Yeah. So hello everyone. So in today's live session, I'll be taking few topics to discuss. And along with that, if you people have any doubts or any queries, you can drop it. Okay. Let me start with that. I have my brains. I have my app by name Civil Brains. So if you're interested, I mean, I would suggest you people to download it. And I've given few free courses, free courses over there. You can start with my small course of a free course, and if you feel my content is good, definitely I would suggest you to enroll in my courses. And these are the reviews given by my students who have enrolled in my courses. Okay. सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है ये मेरा स्कैनर है आई मीन दिस इज अ स्कैनर टू डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप यू कैन स्कैन it, download it, and make use of this free course. See how I teach, see what knowledge you have. Then if you feel you are someone, if you feel like you want to upgrade your knowledge, definitely this particular course are for you. Okay. Yeah, so I'll give you another 5-10 seconds of time. If you're interested, definitely download it. And whatever efforts you're putting in downloading, no, definitely you'll get some value through my free course. Okay. Yeah, that. And these are the reviews where my students are working. One has got a 7 lakh package, one has got 4.2 lakh package as a fresher. Yeah, got it done. So if you have any questions, definitely put it in the comment box. So in today's class, yeah, let us start with some basic things. Okay. uh, so I mean, I know few of you might be knowing all these things, but anyhow, I'll start from fresh. See, this is PCC, what we call PCC stand for plain cement concrete. So when you do the excavation, no, this is excavation what we have done. Then we have to do a proper compaction everywhere. And you see here they have put a PCC. This stand for plain cement concrete. Usually the thickness of the PCC is 75 to 100 mm. In few of the drawing they mention it as 75. In few drawing they mention it as 100 mm. So this is how we have put it. So when you're working on the construction site, you should know to find the quantity of this. Like if I ask you, say 1, 2, 3, 4, 4, and one other one, 5 footings are there. I want you to calculate the concrete quantity of this. So how do you calculate? It's very simple. You will be knowing the length of this. You will be knowing the breadth of this. You know the thickness of PCC, which is usually 75 to 100 mm. Multiply all the three quantities. You'll get the answer in cubic meter. Similarly, what is this thing? So this is called as a pedestal. It's not a column, it's a pedestal. The one which we'll put over this one we'll be calling it as a column. And what is this? The beneath, this is called as your, which one? PCC, and above the PCC we have a footing here. Got it? And if I ask you to calculate all the quantity, can you do that? It's very simple. Concrete quantity, you can easily do it. You know what is the length of the footing, you know what is the breadth of the footing, and you know what is the depth of the footing. Multiply all the three quantities, you'll get the concrete quantity. Same with the column. In the column, you know, I mean, it's a pedestal here. You know the breadth of the pedestal, you know the depth of the pedestal, you know the height of the pedestal. Multiply all the three, you're going to get the concrete quantity for the pedestal. In the same way, imagine that you're working on this particular project. Imagine that you're working on this particular project, and I told you within, let's say, 1 minute, I want the entire quantity of this column. Can you calculate the entire quantity of this column within a minute? Very simple. So from the picture, all the column has been casted to a same height. And also from the picture, what I can identify is that the length, I mean the breadth, the depth, and the height of the column is equal. The dimensions are same. So what you're supposed to do, just calculate the concrete quantity for one column. You know what is the breadth, you know what is the depth, you know what is the height. So usually in the column around zero point 0.5, zero point 0.6 cubic meter for concrete will come. Let me do the calculation for you. See, let's say the column size is 300 by 600 by 3 meter. I'll take. So 300 mm is zero point 0.3 meter. I'll multiply zero point 0.3 by zero point 0.6, and I'll multiply the height by 3 meter. So you know what is the quantity I'm getting? 0.54. That is half cubic meter of concrete is required in a 300 mm by 600 mm by 3 meter of a column. I got the zero point 0.5 cubic meter is required. Now just see how many number of columns are there. Let's say around, let's say 50 columns are there. That's it. 50
into 50 I'll do. Roughly I am getting 27 cubic meter. So in this way, you should know how to take the decision on the site. See now this 0.57 which I calculated, you should keep in your mind. It's a kind of a thumb rule. So many students ask me, sir, send me the thumb rule and all. See, thumb rule you can create on your own. So on average, usually for the column we go with 300 by 600, and height is generally 3 meter for us. So on average, you can expect a concrete quantity in a column to be a 0.5 cubic meter roughly. Multiply by the number of columns, you will directly get the concrete quantity. Same thing, if I ask you to do it here, you can do that. In the same way, if I ask you to calculate what is the shuttering quantity, I mean, this is your beam bottom. So can you find the beam bottom quantity? You can find it. Of course, I'll not teach here. All these things is taught in my course, but I don't only teach you the beam bottom. I also teach you how to calculate the props and all. Because if you're a site engineer, no, after finishing my course, I expect that I'll be giving a site something like this. Let's say you're a site engineer. I'll give you a site something like this. You have to do the entire calculation of this particular building, how much shuttering material is required, how much props are required. This is what I expect from you after finishing my courses. I just don't teach you that this is a column, this is curing, how all these things everybody teaches, and I also teach. But I expect that if I give you a project something like this, you should be in the position to handle those projects. So that is what I teach in my courses and all. Yeah, if you have any questions, आपको अगर कोई question पूछना है, put it in the comment box. I'll answer. Sir, price of construction. See, price of construction manager mastery. Earlier it was about 10,000 rupees. For the past 2 days, I've increased the price for 15,000. The reason behind that is I'm completely adding new lectures in my site engineer course. If you have seen my content, daily I'm uploading around 2 to 3 hours of new lectures. And by the end of October, I'll finish it everything. The content what I'm adding is priceless. Even if you take training in 10 training institutes, or even if you join 5 training institutes online, they cannot match it to the level what I teach in site execution. Second is by the end of December or in first week of January, I'll be adding a course on high-rise building construction and my one construction, and I'm updating my qa course. So that is the reason, since I'm giving more value to, I've increased the price to 15,000 rupees. या सर, क्या नागपुर में कोई जॉब? यार देखो, मैं हर बार बोलता हूँ, मेरे से जॉब क्यों पूछते हो? टेल मी, आप नागपुर से हो क्या? तो नागपुर में जितने कंस्ट्रक्शन कंपनी है, गूगल में जाके चेक करो, उनका प्रोफाइल मिलेगा। एक बार गाड़ी लेके बाहर निकलो, जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं वहां पे जाके बात करो। और नागपुर में अगर आपने 3-4 कंपनी आइडेंटिफाई किया, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल में जाके चेक करो। ठीक है, ऐसा आपको लोगों को कनेक्ट करना। मैं रहता हूँ बैंगलोर में, बैंगलोर वाला बंदा मैं आपको नागपुर, आई हैवंट सीन नागपुर आल्सो इन माय लाइफ। अगर आप नागपुर से हो, आप मेरे से ज्यादा तो आपको पता है, तो आप कर सकते हो ना ये काम। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, मिल जाते हैं, पर ये सब 1 महीने 2 महीने लगेंगे। फाइन, बट एनी हाउ माई व्हाट्सएप ग्रुप इज देयर, वहां पे अगर कोई वैकेंसीज आते हैं मैं डालता हूँ। बट आई डोंट पुट ओनली कि नागपुर का ही आएगा, नहीं, ऑल ओवर द इंडिया आई पुट। ठीक है, बट अगर आपको नागपुर में चाहिए, फॉलो दिस प्रोसीजर। हाँ सर, कॉलम और पेडेस्टल में क्या डिफरेंस है? या कॉलम और पेडेस्टल में क्या डिफरेंस है, आई टेल यू। चलो, I'll go back to this column और pedestal का difference I'll tell you. Where is that? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? देखो, एक्चुअली क्या है, आपको एक पंचिंग शेयर का कॉन्सेप्ट पता है? यू हैव द, सर मैं दिल्ली से हूँ तो जॉब बता दो। चलो, एक और भैया आ गया। ठीक है, देखो, यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फुटिंग डिजाइन। फुटिंग कैसे डिजाइन किया जाता है? अगर ये मान लो मेरे पास फुटिंग है, चलो 1 मिनट, अगर मेरे पास ये फुटिंग है, इफ दिस इज माय फुटिंग, फुटिंग के ऊपर कॉलम का लोड आएगा। जब फुटिंग का डिजाइनिंग करोगे, आपको क्या करना, पंचिंग शेयर के लिए डिजाइन। पंचिंग शेयर मतलब जब कॉलम का लोड आएगा ना, वो इस तरह से पंच करता है। दिस इज हाउ इट पंच, या ऐसे पंच करेगा। तो अगर ऐसा पंच नहीं करना, मेरे पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? या तुम फुटिंग का डेप्थ बढ़ा दो, जैसे इंस्टेड ऑफ दिस फुटिंग अगर मैं इसको यूज करूंगा तो इसका डेप्थ ज्यादा है ना, कंपेयर टू दिस इसका डेप्थ ज्यादा है। अब वो पिंचिंग नहीं करेगा। दिस इज वन ऑप्शन। दूसरा चीज, प्रॉब्लम किस में, पंच कॉलम पंच कर रहा है ना इस तरह से, तो इंस्टेड ऑफ दिस साइज ऑफ द कॉलम, मैं कॉलम का साइज अगर मैं बढ़ा दूं, दैट इज ऑल्सो अनदर ऑप्शन। बट इन दोनों में प्रॉब्लम है। अगर मैं कॉलम का साइज बढ़ा दूं, तो आर्किटेक्ट बोलेगा हम अलाउ नहीं करेंगे आपको कॉलम का साइज इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फुटिंग का डेप्थ इंक्रीज करना है। अगर फुटिंग का डेप्थ इंक्रीज करेंगे, वहां पे स्ट्रक्चर इंजीनियर बोलेगा यार फालतू में हम उसका डेप्थ इंक्रीज कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी बढ़ेगा। अब इन दोनों के बीच में हमें एक क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन इज पेडेस्टल।
अब पेडेस्टल में क्या करेंगे, जैसे ये आपका पेडेस्टल है, पेडेस्टल में हम क्या करेंगे, हाँ अंडरस्टैंड लाइक दिस, ठीक है, ये आपका काइंड ऑफ पेडेस्टल है। मतलब यहाँ से यहाँ पे कॉलम है, यहाँ से यहाँ पे कॉलम है, और कॉलम के नीचे वाला जो इतना पोर्शन है ना, ये साइज मैंने बढ़ा दिया। अब इससे क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये मेरा फुटिंग है। अब ये पंचिंग नहीं करेगा। पंचिंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अभी कॉलम का जो बेस है वो बढ़ा दिया। अर्लियर मेरा कॉलम इतना ही था, लेट्स से 300 का था, अभी मैं कंपेयर टू दिस अभी ये मेरा 500 बन गया, तो अब ये पंचिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब मैंने सिर्फ नीचे वाला पोर्शन बढ़ा दिया। अब ऊपर वाले में सिर्फ कॉलम ही है, तो आर्किटेक्ट को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कॉलम में जो पोर्शन है ना, ये आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर दिखेगा। समझ में, ये आपका ग्राउंड लेवल से ऊपर दिखेगा। ये जो मैंने पोर्शन जो बड़ा किया है ना, ये जब आप बैक फिलिंग करोगे तो मिट्टी में चला जाएगा। जब मिट्टी में चला जाएगा कोई देखेगा ही नहीं। इसीलिए व्हाट वी डू, इंस्टेड ऑफ अननेसेसरी इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द फुटिंग, व्हाट आई विल डू इज मैं सिर्फ कॉलम का साइज इंक्रीज करूंगा। जो नीचे वाला पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एज पेडेस्टल। इसीलिए अब इस इमेज में आप देखो, ये वाला दिख रहा है आपको, आई थिंक ये वाला लो इमेज, या यहाँ पे देखो, ये सब आपके पेडेस्टल है। कहाँ पे गए, आई थिंक देयर वाज वन मोर इमेज ना, ओके ये वाला इमेज है, ठीक है चलेगा, इसी में एक्सप्लेन करूंगा। हाँ देखो, ये आपका क्या है, पेडेस्टल है, इसका कास्टिंग किया, इसके ऊपर ये वाला पोर्शन में कॉलम का कास्टिंग करूंगा। अब तुम बैक फिलिंग करोगे, बैक फिलिंग जब करोगे, मिट्टी हम यहाँ तक भरेंगे। जब मैं मिट्टी यहाँ तक भरूंगा, ये तो पूरा नीचे चला जाएगा, तो वी डोंट हैव प्रॉब्लम। और जो आर्किटेक्ट को जो कॉलम दिखेगा इसके बाद, ये तो यही वाला साइज का कॉलम है, सो आर्किटेक्ट हैज नो प्रॉब्लम। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो अगेन अगेन आई रिपीट, ये सारे चीज मैं अपने कोर्स में कवर करता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आप साइड में जाके खड़े होके, तो किसी ने बोला कि वो पेडेस्टल है, किसी ने बोला कॉलम है, तो अब उसके पीछे का लॉजिक ही पता नहीं ना। जब लॉजिक ही पता नहीं, तो फिर क्या मजा आएगा आपको साइट एग्जीक्यूशन के जॉब करने में। अभी तो मैं कॉन्सेप्ट पता चला, नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो आपके दिमाग में पंचिंग दिखेगा, हाँ पंचिंग हो रहा था इसलिए साइज मैंने बढ़ा दिया, नीचे का ऊपर का कॉलम है, तो आर्किटेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस आर द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। हु इज दैट, किसने पूछा था वो, ओके डोंट नो, हाँ ओके, द मूवी हब इंडिया, ठीक है, समझा दिया ना। somebody told that pedestal is a base, ठीक है चलो। सर दिल्ली में जॉब, ओके सर, बेसिक एक्सप्लेन बेसिक टू एडवांस स्टेप रोड मैप फॉर प्लानिंग इंजीनियर जॉब इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सी टू बिकम अ गुड प्लानिंग इंजीनियर, साइट पे चले जाओ, 1-2 साल काम करो, 2-3 बिल्डिंग स्टार्टिंग से एंड तक पूरा हैंडल करो, एग्जीक्यूशन से लेके हैंडिंग ओवर तक। अगर ढंग से एग्जीक्यूशन आप सीख लोगे, दूसरी चीज, जब भी आप साइट पे काम करते हो, जो जो काम आप साइट पे करते हो सारे को नोट डाउन करना है। कैसे नोट डाउन करोगे, मान लो प्रोजेक्ट मिला आपका, तो आपने फाउंडेशन का काम पूरा किया, किस डेट पे आपने फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया, किस दिन में आपने फाउंडेशन का काम खत्म किया, नोट डाउन करो, ठीक है। फिर जब साइट पे काम करते हो, मेसन काम करेगा, बारबेंडर काम करेगा, कारपेंटर काम करेगा, शटरिंग वाले सब काम करेंगे, तो देखो एक दिन में वो कितना काम करते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कारपेंटर और एक हेल्पर को लगाया, तो एक दिन में लगभग 8 से 10 स्क्वायर मीटर का शटरिंग बांधेंगे वो लोग, दैट इज अ प्रोडक्टिविटी। वो कहाँ से आएगा, तुम साइट पे नोट डाउन करोगे, पूछो उस कारपेंटर को, यार आज तुमने कितना स्क्वायर मीटर, अगर वो उसको नहीं पूछोगे तो आपको पता है कैसे शटरिंग क्वांटिटी फाइंड करना है, पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट विल बी अ शटरिंग क्वांटिटी। समझ में आ रहा है, तो देखो कितना कॉलम बांध दिया, उसका प्रोडक्टिविटी निकालो, सब नोट डाउन करते चले जाओ 2 साल तक, फिनिश, यू आर डन, यू आर अ प्लानिंग इंजीनियर। बस इसके साथ साथ व्हाट यू हैव टू डू इज एमएस प्रोजेक्ट सीख लो, एंड फिर प्राइमवेरा सीख लेना, खत्म, और कुछ नहीं करना है। पर वो 2 सॉफ्टवेयर सीखने से पहले पूरा साइट एग्जीक्यूशन, प्रोडक्टिविटी, एस्टिमेशन, बीबीएस, बीओक्यू, कॉन्ट्रैक्ट्स डॉक्यूमेंट पढ़ना, एवरीथिंग यू हैव टू लर्न, ठीक है। फाइन, सिंपल, अपाला इंजीनियर हैव टोल्ड इट। सर कॉलेज में हमें सर ने क्वेश्चन पूछा था कि मेट्रो के लिए जो कॉलम रहता है वो आर्क की क्यों होता है ऊपर साइड स्लाइड, रीजन बताइए, व्हाट इज दैट। तो कॉलेज में हमारे सर ने क्वेश्चन पूछा ताकि मेट्रो के लिए जो कॉलम रहता है वो आर्च ही, अरे मुझे आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट द मेट्रो का, आप बिल्डिंग से रिलेटेड पूछेगा, आई एम द बेस्ट पर्सन टू एक्सप्लेन, हाईवे एंड मेट्रो एंड ऑल आई डोंट हैव नॉलेज, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन। सो व्हाट आर फ्लैट बीम्स एंड हाउ टू प्रोवाइड them, what is this flat beams, I don't know what is flat beam, you मतलब what is that, you are asking what is hidden beam, I don't know what is flat beams, I never heard. I know what is flat slab, but flat beams I don't have an idea. Sir, which field is best in future? All fields are best in future. Depends आपका interest किस में है. How to handle labor? How to handle labor in terms of what?
सर एक आइडिया दे दो, जॉब कहाँ से देखो यार। तुम लोग ना मेरे वीडियो देखते नहीं हो, बस फालतू लाइव लाइव क्लासेस में आ जाते हो आप लोग। वेट करना, जब मैं वीडियो बना के रखता हूँ आप कुछ देखते नहीं हो, और फिर वहाँ पे बार बार सेम क्वेश्चन ही पूछते हो आप। आप मेरे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो देखते हो क्या आप? वो देखते नहीं आप? अगर आप देखते ना तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते आप लोग। लो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। 1 मिनट, ये वीडियो दिख रहा है, वाई कंपनीज डोंट हायर फ्रेशर्स। तो ये पूरा 37 का मिनट का वीडियो है। मुझे पता है तुम लोगों के पास 37 मिनट वीडियो देखने का पेशेंस नहीं है, इसलिए आप बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सर बता दो कहाँ से हैंडल का आइडिया दे दो कि जॉब कहाँ से दे दो। देखो ये पूरा वीडियो देखो, तुम्हें पूरा आइडिया मिलेगा कि जॉब कहाँ से अप्लाई करने, कंपनीज को कैसे अप्लाई करने, एवरीथिंग विल गेट टू नो। ठीक है, ये वाला वीडियो पूरा देख लो। अब मेरे को एक चीज बताओ, कितने लोग वो वीडियो देखते हैं जो मैं अपलोड करता हूँ? पूरा वीडियो देखते हो, आधे देखते हो, व्हाट इज दैट? ठीक है, फाइन। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, जिसने भी पेडेस्टल का पूछा, आई एक्सप्लेन इट। Yes, sir. Flat beams and hidden beams are same as per Google. Please guide us through what and see. Flat beams are also called as concealed beam. Okay, flat beams, not flat beams. I don't call them flat beams. We call them as hidden beam, or few people call it as a concealed beam. But practically, there is no design for flat beam. There is no design for hidden beam or concealed beam. It is not given anywhere. So what few people do is that they think that if any wall load is coming, मुझे वो, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, क्या बोलते हैं यार उसको, जो वॉल लोड है ना, तो वॉल लोड को ट्रांसफर करने के लिए पीपल क्या करते हैं, वहाँ पे नीचे एक बीम देते हैं। so those beam they call it as a hidden beam or a concealed beam. So practically if you refer any literature or any book or code book and all, उसका कोई डिजाइन नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, जो भी स्लैब का थिकनेस है ना, जो भी स्लैब का थिकनेस है जो 150 mm होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक बीम को प्रोवाइड करेंगे विच इज कॉल्ड एज अ हिडन बीम और कंसील्ड बीम। हाँ सर, वीडियो बहुत लंबा होता है इसलिए पूरा नहीं देख पाते कभी कभी। हाँ तो वही प्रॉब्लम है ना। आई कैनॉट डू सी यार, देखो मैं एक चीज बताऊंगा। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो मैं 5-10 मिनट में आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा। 5-10 मिनट में मैं सारी चीज आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली मेरे वीडियो 20-25 मिनट के रहेंगे। इफ यू हैव पेशेंस तभी वॉच करो, अदरवाइज मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट उस वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन, क्योंकि मेहनत तो लगेगा ना आपको। ऐसी जॉब कहीं से भी नहीं मिलता है सभी को, राइट? सभी लोगों को जल्दी जल्दी चाहिए। मान लो किसी को रिज्यूमे दे दिया, वहां से रिप्लाई आएगा, ऐसा नहीं चलता है ना। सो दैट इज वाई वो पूरा वीडियो देखो। हाँ अगर आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बट इफ यू हैव गुड इंटरनेट कनेक्शन एंड वाईफाई है, डेफिनेटली वॉच करो उसको। 1x 2x स्पीड में देखो ना, 1.5 2x की स्पीड में देखो। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया, आप लिंक्डइन में जाओ, लिंक्डइन में पूरा जॉब मिलता है, आपको सर्च करना पड़ेगा लिंक्डइन में। ठीक है, इसे सब कुछ मिल जाता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। ओनली थिंग तो पेशेंस लगाना पड़ेगा। अब 5-10 मिनट देखने के बाद तुम्हें 50 जॉब नहीं मिलने वाला है। तो तुम आधे घंटे 1 घंटे तक लिंक्डइन स्क्रॉल करते रहोगे, वो लिंक्डइन तुम्हारा एल्गोरिदम पकड़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप कंटेंट देखते जाओगे लिंक्डइन में लिंक्डइन को पता चलेगा कि ये सिविल वाला बंदा है, ये सिविल के जॉब्स देख रहा है, तो उस हिसाब से तुम्हें सिविल वाले लोगों को पुश करेगा। तो उसको एल्गोरिदम पता होना चाहिए। अब तुम 5 मिनट लिंक्डइन देख के बोलोगे सर मिलेगा नहीं मिलेगा ना, लिंक्डइन को पता तो चलेगा कि तुम किस टाइप के बंदे हो, तुम क्या सर्च कर रहे हो, किस टाइप के कंटेंट। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में क्या होता है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के 4-5 वीडियो देखोगे, फिर आपका पूरा होम स्क्रीन में सिविल इंजीनियरिंग के वीडियोस आएंगे ना। एग्जैक्टली exactly. तो सेम थिंग लिंक्डइन ऑल्सो सेम थिंग। आप आधे घंटे 45 मिनट्स आप देखते रहो, आप बस डालो कि सिविल इंजीनियरिंग ऊपर पेश करो एंड ऑल। ठीक है, सो आई विल शो यू फ्यू थिंग्स। चलो आई विल ओनली शो यू। स्क्रीन दिख रहा है ना? जस्ट 1 मिनट। फिर बाकी तुम डाउट्स पूछो वहां पे। लेट मी चेक। यस, टू बी फेयर आई पर्सनली प्रीफर डिटेल वीडियोस लाइक यू प्रिपेयर। ओके, लाइक एज इंस्टाग्राम, व्हाट इज दैट? लाइक एज इंस्टाग्राम क्या है वो? ठीक है, देखो अभी मैंने लिंक्डइन खोला है, ठीक है।
सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम स्क्रॉलिंग डाउन एवरीवेयर, ठीक है। अभी एक दिलीप कुमार, ये बंदा सिविल इंजीनियर है, कंक्रीट एक्सपर्ट है, टेक्निकल एट आदित्य स्ट्रक्चर, आई हैव कनेक्टेड टू हिम। जब भी ये बंदा कुछ पोस्ट करेगा ना, 2 वीक्स बिफोर का पोस्ट, तब भी मेरे को दिख रहा है अभी। सो आई कीप ऑन स्क्रॉलिंग, ठीक है। नहीं तो क्या कर सकते हो, यू कैन कम टू लिंक्डइन, पुट सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स। आप क्या करो, कम टू लिंक्डइन, पुट सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स, ठीक है। तो ये भी आपको मिल जाता है। हम्म, तो यहाँ पे देखो सिविल इंजीनियर गिब्स बिजनेस स्कूल कुछ लिखा है, देखेंगे, क्लिक करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको, ये बनीरघट्टा रोड में है। ये आपका द सिविल इंजीनियर इज रेस्पॉन्सिबल प्लानिंग डिजाइनिंग एग्जीक्यूटिंग सुपरवाइजिंग, कुछ लिखा है यहाँ पे। तो पूरा एक बार पढ़ लो, पर 3 to 6 ईयर का एक्सपीरियंस पूछ रहे तो छोड़ दो, आपके लिए नहीं। अगर आप एक फ्रेशर हो, देन दिस जॉब इज नॉट फॉर यू, डोंट प्रॉब्लम। इन दैट केस व्हाट यू डू, सिविल इंजीनियर जॉब्स आप फ्रेशर डाल दो। फ्रेश ऐसा आप करते रहोगे ना, आप इधर भी करोगे, गूगल में भी जाके करोगे, तो एवरीबडी विल अंडरस्टैंड कि आप फ्रेशर जॉब के लिए अप्लाई करोगे। देन वो आपको उसी टाइप का एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा। अब यहाँ पे एक है ट्रेनी फ्रेशर्स का लिखा है यहाँ पे, गुड नॉलेज इन बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑन ऑटोकैड एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। एंड ऑल्सो देखो मेरे चैनल पे, देखो मैंने कल 2 पोस्टिंग किया है। ओके, आई गो बैक, होम स्क्रीन में जाऊंगा, देखो यहाँ पे आप लोग जॉब नहीं है, ये क्या है फिर, देखो स्काई ट्री इज अ वेरी गुड कंपनी, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, जूनियर डिजाइन इंजीनियर्स के लिए लिखा है और फ्रेशर को भी लिखा है। तो फिर क्यों नहीं जॉब मिल रहा है, मिल रहा है जॉब, ढूंढना पड़ेगा ना। एंड ढूंढना इतना आसान नहीं। देखो मेरा केस अलग है, मैं पूरा दिन यूट्यूब इंस्टाग्राम लिंक्डइन पे रहता हूँ, तो मेरे को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। आई एग्री दैट जितना मेरे को मिलेगा आपके पास उतना नहीं होता है, और आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता है। अभी देखो ग्लिट्स इज अ वेरी गुड कंपनी, अगर किसी को कंस्ट्रक्शन लाइन में क्यूएस लाइन में आगे जाना है, देन इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अभी देखो इनका एडवर्टाइजमेंट आया था, वो भी वॉक इन ड्राइव है बैंगलोर में। एंड दे आर ऑल्सो आस्किंग 0 to 15 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपको थोड़ा साइट का भी नॉलेज है, थोड़ा आप ये कर लोगे, एस्टिमेशन करना आता है, बीबीएस करना आता है, एक्सेल शीट बनाना आता है, थोड़ा टेक्निकल चीजें अच्छा, एंड इफ यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। बट ये वॉक इन इंटरव्यू है, डेफिनेटली इतना अगर आपके पास ताकत है तो कम टू बैंगलोर फॉर द इंटरव्यू। अगर नहीं, अगर आपको डर है, देन डोंट कम, क्योंकि फिर वो आप आओगे जाओगे ना, फिर खर्चा भी लगेगा। देखो यहाँ पे 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस पूछ रहा था, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नाउ अगेन आई विल गो बैक स्क्रॉल, देखो ईपैक इज ऑल्सो वेरी गुड कंपनी, अगर आपको पीबी में काम करना है ना, यू शुड। सर मैं दिल्ली से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है, अब कंपनी आ रही है, मैंने भोपाल से ट्रेनिंग भी की 2 मंथ सीपीडी, लेकिन ये सोचता बाहर से भी ट्राई करूँ। तो ओके, मैं दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है, आप कंपनी आ रही है, मैं भोपाल से, ठीक है चलेगा। आप क्या करना, देखो जब कॉलेज में आपके प्लेसमेंट्स होने वाले ना, तो आपको बेसिकली वो क्वेश्चन आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थोड़ा आरसीसी के क्वेश्चंस, एंड फिर आपको कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन, यही सारी चीज आपको पूछा जाता है। आपका टेक्निकल जो स्किल्स है ना, उसको देखा जाता है, ठीक है। डेफिनेटली उसके ऊपर आप फोकस करिए, दैट वुड बी बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कुछ आपको बीबीएस के बारे में पूछा है, अगर आपको लेट्स से साइट के बारे में पूछा, आपने ट्रेनिंग कर लिया है, आप वो आंसर भी वहां पे दे सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, see you send that this thing, what is that drawing on slow footing, I'll check it out. Sir, how much salary structure in MTech can get in Ahmedabad? See, again, there's nothing like how much you'll get and all. It all depends like from which company you're applying, and also from which college you're graduating. I mean, yeah. So in Ahmedabad, that CPT college is good. The placements are also good. If you're getting it done from a good college, no, on average you can expect around 5 to 7, 8 lakh package in structure engineering. Depends from which college you are doing. Last time I was showing you that few of the people from NIT IITs are getting 7 lakh, 8 lakh, 9 lakh package in Adani and in Reliance. Okay. But you can expect around 5 to 7.5 lakh in a structure design. But it has to be from the good college, and good companies should come there. But if let's say if you're not getting selected from the college, then you can expect around 3 to 5 lakh. You can expect like 20, 25, 30, 35, depends on the company. Hmm. सर आप जो पोस्ट सेंड करते हैं मैं सब में ट्राई करता हूँ, लेकिन आज तक किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, लेकिन आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है, थैंक्स सर। देखो
रिप्लाई इसलिए नहीं आता कि आप अभी भी बीटेक में हो। आप अभी भी बीटेक में हो तो डेफिनेटली क्यों लेंगे यार आपको जॉब में? बताओ। यू शुड अप्लाई सम लॉजिक। क्यों? आप अभी बीटेक फाइनल ईयर में हो तो तुमको कंपनी क्यों लेगी? तुम कॉलेज छोड़ के तो कंपनी ज्वाइन नहीं करोगे। कंपनी वालों का ऐसा बंदा चाहिए जिसने ग्रेजुएशन किया है ना, तो डेफिनेटली दे नॉट एंटरटेन यू। सो व्हाई यू आर अननेसेसरी अप्लाइंग फॉर दिस कंपनीज? फिनिश योर बीटेक, देन अप्लाई फॉर द कंपनी, राइट? सिंपल। तो आपको रिप्लाई आएगा ही नहीं, आप बोलोगे आई एम परस्यूइंग बीटेक, वहीं से वो रिजेक्ट कर देगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, दैट शुड नॉट बी डन। तो फिनिश बीटेक, क्यों इतना अर्जेंट क्यों है आपको? ठीक है, ओके। सो आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन, देखेंगे और कहीं वैकेंसीज आ गया तो। ठीक है। सो इन दिस वे देयर आर मेनी। देखो, सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के नाम से एक ग्रुप है, इसमें आप कनेक्ट करके रखिए। आप जैसे जैसे कनेक्ट करते चले जाओगे ना, सम और द अदर आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाते हैं। ठीक है। एंड इसमें दुबई के जॉब्स भी बहुत सारे आते हैं आजकल। बट अगेन देखो, कुछ फेक भी होते हैं, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। अब देखो इधर देखो, देखो इधर देखो, ऐसे फेक भी आते हैं। एक बंदे को ना जिंदल स्टील से जॉब मिला है, और इन्होंने जिंदल स्टील ने डायरेक्टली लिख दिया कि हमने इश्यू नहीं किया। तो आपको ऐसे फेक वाले लोग भी मिलते हैं, तो जितना होगा ये सब अवॉइड करो। ठीक है, या फाइन। चलो, और कोई क्वेश्चन पूछना है? यू आस्क मी एनी क्वेश्चन। इधर आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन द लिंक्डइन तो देखेंगे। ठीक है, अगर कोई मिलेंगे, कोई जॉब वैकेंसीज मिल ही जाती है इस तरह से आपको। हाँ देखो, ये वाला देखो, ये देखो, हायरिंग सिविल इंजीनियर अबू धाबी यूएई में है। 14,000 दिराम्स, 14,000 इज ऑलमोस्ट अच्छा सैलरी है। लगभग 2 लाख, 14 20 2,80,000 के आसपास हो गया। ठीक है, पर यहाँ पे 5 ईयर्स जब पूछा है, दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं यहाँ पे। एंड वहाँ पे कुछ ऐसे भी जॉब्स आते हैं जो फ्रेशर्स के लिए भी होते हैं। ठीक है, वो भी आपको देखना होता है। आई थिंक कल और परसों मैंने 2 3 ऐसे जॉब्स देखा था जो फ्रेशर्स के लिए है। दैट ऑल्सो यू हैव टू सी। ठीक है। और ये देखो, वर्ल्ड ऑफ कॉन्क्रीट इंडिया के नाम से एक पेज है, इसको भी आप यू नो व्हाट इज दैट, लाइक करके रखो, फॉलो करो। ठीक है। तो देखो, इस तरह से आपको बहुत कुछ मिलता है। यू जस्ट हैव टू कीप ऑन स्क्रॉलिंग। आप जैसे जैसे स्क्रॉलिंग करते चले जाओगे ना, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा वहां पे। फाइन। चलो, और कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों को? आस्क मी। सर मैं इसलिए अप्लाई सर मैं इसलिए अप्लाई करता हूँ क्योंकि क्योंकि व्हाट इज दैट, क्योंकि मेरा 5th सेमेस्टर एंड होने वाला है दिसंबर में, और 6th सेमेस्टर में सिर्फ मेजर ट्रेनिंग है, स्टडी नहीं होगी। तो फिर क्यों लेंगे? नहीं लेंगे यार, आपको छोड़ दो, आप कंपनी के लिए अप्लाई मत करना। व्हाट यू डू, छोटे छोटे जो लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी है उधर जाके बात करो। डोंट एक्सपेक्ट एनी रिप्लाई फ्रॉम गुड कंपनीज, बिकॉज गुड कंपनीज आपको जॉब पे नहीं लेंगे। अगर आपको वहाँ पे एज इंटर्नशिप करना है तो इंटर्नशिप करो, पर आप जितने भी यहाँ पे अप्लाई करो जॉब का है तो जॉब मिलेगा नहीं। अगर कोई वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए आ रहे तो आप अप्लाई करो, जॉब के लिए आपको लेंगे भी नहीं वहाँ पे। ठीक है। सो कैन यू टेल अस द डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड किलो न्यूटन? उसमें डिफरेंस क्या ही है? देखो, एमपी मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, जैसे आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ एंड ऑल व्हाट वी डू इन टर्म्स ऑफ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, विल एमपी इज इक्वल टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। किलो न्यूटन इज नॉर्मल किलो न्यूटन इन टर्म्स ऑफ लाइक, जैसे 1 किलो न्यूटन, 1 किलो नो 1 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 101.9 kg के आसपास। ठीक है, तो वो केजी वाला है, ये आपका न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पे कितना लोड पड़ रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है। या सर, आपने मेरा हौसला तोड़ दिया, इतना मेहनत कर, मेहनत करोगे सही जगह पे करना है ना आपको मेहनत। सिंपल, आप ही एक लॉजिक लगाओ। आप अभी भी 6 एम में हो, अगर 6 एम में हो तो तुम्हारा बीटेक कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट ही नहीं हुआ, कंपनी वाले क्यों लेंगे आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने हैं। अगर इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें तो कंपनी को लिखो कि मैं 6 एम में हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू अ इंटर्नशिप इन योर कंपनी। तो ऐसे इंटर्नशिप लिखो उनको। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप ऐसे वाले जॉब्स में अप्लाई कर रहे हो, सही है ना? तो आप बस दिमाग लगाओ ना थोड़ा सा, क्या लिखा है, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा बी बीटेक इन सिविल। हाँ, अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है तो इन दैट केस फाइन, ठीक है। आपका अभी भी बीटेक हुआ ही नहीं, तो बंदा 0 to 2 years पूछ रहे, तो मैं क्यों लेगा? वो लेगा ही नहीं, सही है ना? देखो, यहाँ पे भी थोड़ा ही दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है। क्या लिखा है इसने? जूनियर डिजाइन इंजीनियर फ्रेशर्स लिखा है। तुम फ्रेशर थोड़ी हो, अभी तक तुम्हारे हुआ भी नहीं कॉलेज, तो क्यों लेंगे? सिंपल। तो आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। ठीक है सर। फिर सर,
प्लिंथ बीम का लैपिंग प्रोविजन क्या है? से अगेन सेम थिंग है, लैपिंग हैज नथिंग टू डू विद प्लिंथ बीम, ठीक है। नॉर्मली व्हाट यू डू, लैपिंग आपको कहाँ पे करना है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट बहुत ही कम है वहां पे लैपिंग करने। तो बीम में टॉप एंड बॉटम 2 बार आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मेरा ऐप इसलिए नहीं चल रहा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आज रात देख लो आप, कल तक सही हो जाएगा, ठीक है। और आई थिंक अभी अभी तो सही चल रहा है, एक बार चेक कर लो, मेरा ऐप सही चल रहा है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था कल से, तो आज एक बार चेक करो, अब सभी का चल रहा है, फाइन। या प्लेन बीम देखो, टॉप और बॉटम का लैपिंग होता है, तो ऑलवेज व्हाट यू हैव टू डू, टॉप बार आपको सेंटर पे लैपिंग नहीं करना है, सॉरी, हाँ, टॉप बार आपको सेंटर पे लैपिंग करना है, मतलब आपको दोनों सपोर्ट से L/4 आपको छोड़ना है, बिकॉज दैट इज वेर योर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। तो टॉप बार को आप सेंटर पे लैप करिए, बॉटम बार को आपको सेंटर पे लैपिंग नहीं करने, बॉटम बार को आपको नियर द सपोर्ट विद इन L/4 आपको लैपिंग करना है फॉर अ नॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर आप अर्थक्वेक डिटेलिंग, अगर आप IS 13920 फॉलो करोगे, तो आपको फिर सपोर्ट से अगेन कितना होता है, 2D डिस्टेंस छोड़ के आपको लैपिंग करना होता है, सिंपल इतना ही कॉन्सेप्ट है। So always देखो, the concept is same. Wherever your bending moment is minimum, there you have to do the lapping. In case of beam, the bending moment is minimum at a distance after L/4 at the top beam, top reinforcement, and bottom में within L/4 आपको lapping करना है, बस। Sir, with 1 year, how much salary I can expect as a site engineer? Say again, same answer. You can expect a salary, the industry standard, if you are going for off campus, 20 to 30 is what you can expect. Generally few people pay you 20, few people pay 25, few people pay 30. That is how it is. Now people those are working for 8k, 10k, 12k, 15k, they are not working for a good company, they lack technical skills, they have a fear that they don't know anything, so they join for 8, 10, 8k, 10k, 12k. I am not considering those people. I'm considering someone who has at least a good knowledge. You can expect a salary from 20 to 30, ठीक है। अगर कॉलेज का प्लेसमेंट होता है तो वो लोग आपको 5 लाख 6 लाख के पैकेज आपको देते, जो लेट से 35 40, मतलब ऑन एवरेज 4 लाख से स्टार्ट होता है, अच्छे कॉलेज में अगर आपका प्लेसमेंट हो जाता है 4 लाख से स्टार्ट होता है, यू कैन एक्सपेक्ट 30 से 50 के आसपास। Sir, does Dubai have similar construction practices as India, or they different? If a person has experience in Dubai construction, will yeah. See, it has nothing to do like that. I mean, in Dubai and all, they speak more about the quality. Construction remains the same. Construction remains the same. There won't be change unless, I mean, depends on the structure. See again, whatever question you people are asking, no, everything I've taken care of it. The new course which I'm preparing, I've taken care of all these things in my courses. I'll just show you those things. आप इसको चेक कर सकते हो, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, ठीक है। ये मेरा साइट इंजीनियर का कोर्स है, साइट इंजीनियर का कोर्स। गो टू द कंटेंट, हिंदी लैंग्वेज में चला जाऊंगा। अब ये नया रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैंने प्राइस को बढ़ा दिया है, अब और भी बढ़ेगा, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले नहीं दे पाएंगे, इतना मैं गारंटी दूंगा, ठीक है। चलो इधर हमने क्या किया, कवर्ड दैट, जैसे डीप फाउंडेशन क्या होता है, जैसे बुर्ज ऑफकोर्स, उसके बाद पाइल और राफ्ट, ये दुबई के कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कैसे होते हैं, पाइल फाउंडेशन एंड पाइल हेड ब्रेकिंग कैसे करेंगे। तो ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड इन माय साइट एग्जीक्यूशन कोर्स। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर आप ये सारी चीज सीख लोगे ना, देखो दिस आर द फोटोज आई एडेड फ्रॉम माय स्टूडेंट्स हु हैड सेंड मी ऑल दिस इमेजेस एंड ऑल। तो ये सारे वहाँ पे राफ्ट फाउंडेशंस होते हैं, ऑल दिस आर योर राफ्ट फाउंडेशन। अगेन दिस कॉन्क्रीटिंग विल हैपन फॉर लेट्स से 18 घंटे, 20 25 30 40 घंटे तक कॉन्क्रीटिंग होते रहेंगे, एंड इस तरह से आपके राफ्ट फाउंडेशन सब आएंगे वहाँ पे। ये सारे आपके बूम प्लेसर होते हैं, ये आपका टवर क्रेन है, ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट ना। सो ये सब आपके शोरिंग की एक्टिविटीज यहाँ पे किया गया, ऑल दिस आर योर शोरिंग व्हाट दे हैव डन। सो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा, अगेन कंस्ट्रक्शन रिमेन्स द सेम, आई एम शोइंग यू व्हाट आई एम कवरिंग इन माय कोर्सेस एंड ऑल, okay, yeah, so this is how it is. So definitely download my civil brains app so that it will give you a good knowledge. Construction remains the same, you'll do excavation, then you'll put PCC, then you'll put footing, reinforcement, column beam, everything remains the same, it remains the same, but again the quality is more there, and that's how the construction happens, fine. Yeah, sir. See, bend deduction concept again, few people follow, few people don't follow. If you want to follow, if there is a 90-degree bend, you can take 2D deduction. If there is a 135-degree bend, you can take 3D deduction. Okay, simple, that's it. Okay, any other question you have, और कुछ पूछना है आपको?
सर आप अपनी कंपनी ओपन कर लीजिए कंस्ट्रक्शन की. Okay. Okay. Any other question you have? See, people have who have joined now. See, I offer all these courses in my Civil Brains app. This is a QR code to download my app. You can download it. Once you download, I have given a free course for construction engineers. You can enroll in my free course and see how I teach. If you feel my contents are good, definitely I would suggest you uh, to enroll in my complete courses. And they are far, 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 far better than what people are offering in the market in the name of site training and all. Okay. Yeah. So what is the next question? Yeah. Are there any details for pile in any IS? But yeah, for pile we have just under him pile we have. For that we have IS. What is that? I forgot the name. Wait. Yeah, we have code book for everything. For under him piles and all, we have a code book. Wait, let me open that code book. Not the code book. I mean this thing. Hmm. Where is the code book? I had a few code books written here. I'm not finding it. Yeah. So you can see here, no? It is IS 2911 part 1 to 4 2010. This is design and construction of pile foundation. You have this code book where you can find this under rim pile and different types of pile you will get from that particular code book. Yeah. सर आप ऑनलाइन जूम से क्यूएस एंड बिलिंग कोर्स कराते नहीं जूम पे आई यूजुअली डोंट डू मेरे पास कोर्सेस ऑलरेडी अवेलेबल है क्यूएस के कोर्स मेरा ही है बिलिंग आई डोंट हैव मच नॉलेज बिलिंग के लिए मैंने एक सर से रिकॉर्डिंग करके लिया है यू चेक आउट माय कंटेंट आप मेरा सिविल ब्रेंच का आप डाउनलोड करिए एक बार चेक करिए कंटेंट इफ यू फील इट इज गुड यू कैन एनरोल इन द कोर्स वो आपका अगर मान लो आपको अप टू 2-3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के लिए माई कोर्स इज गुड अगर आपको ऑलरेडी 2-3 साल एक्सपीरियंस हो आपको एडवांस लेवल पे सीखना है जस्ट व्हाट्सएप मी if I know someone who can teach you advanced level ka QS, I'll help you out. I'm working into PMC company. Any benefits for this course? See, I don't know. See, it's good that you're working in a PMC company, but I don't know what kind of knowledge you're having. I want to know what is your experience. You see, what I would suggest is download my app, check out the content. If you feel something, what I'm teaching in my courses, you don't know, then definitely you can enroll in the course. So I want to know what is your experience, how many years of experience you have in the PMC. So based on that, I can suggest whether you should buy my course or not. Okay. Say everybody need not buy my course, but for definitely someone in first year, second year, third year, fourth year, 1, 2, 3 year of experience, definitely I would suggest buy my course. But someone let's say having 5, 6, 7, 8 year of experience, then I would not suggest a course because based on the requirement, I can guide you. It's not only that course you have to take, but definitely I don't know what is your technical knowledge. No, there's a difference between what experience you have, what kind of projects you have worked. That also matters. So I want to know that. Based on that, I'll suggest you. सर एक्सेल पे बीबीएस बनाना आपकी वीडियो से सीखा है मैंने जो दिखाते हैं हाँ देखता रहता है या गुड तो आप वहाँ से सीखे अगेन यूट्यूब पे देखते हो उसमें मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करो उसमें आपको आगे स्लैब का स्टेयरकेस का सब उधर से मिल जाएगा डेफिनेटली उसमें थोड़ा पैसा खर्च करो एनरोल इन माई कोर्स दे आर बेटर जो आपने ऑफलाइन ट्रेनिंग किया है उसे 10 times बेटर मेरे कोर्स से यू कैन वेरीफाई इट सो what is the price of the price of construction manager master is 15,000 right now. The reason for 15,000 is I've added a lot of content. I'll be adding a lot of content. So, and there is some 20% off on that. So you may get it for around 12,000, but it is worth the price what you're paying. Okay. Yeah. You see the content. Don't just look at the price. आप एक बार content check करिए ना. If you want, I'll show the content again. आपको कोई question डालना है तो डालो. I'll be there to help you out. Say this is that construction manager mastery course. 14,299 is the price. Don't look at the price because already 485 students have enrolled in the course. Of course, not everybody enroll for it because we have recently increased the price and all. इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा जितने भी मैं फ्यूचर के कोर्सेस लाऊंगा एवरीथिंग विल गेट आपको बार बार मेरे पास कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है सेकंड थिंग इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में मिलेगा गो टू द हिंदी लैंग्वेज लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 5 लेवल है लेवल 1 में स्ट्रेट अवे आई टेक यू टू द साइट एग्जीक्यूशन और जो मैं पढ़ाता हूँ एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट first we'll understand the theory we'll understand the concept then we'll get on to the construction side and from the construction side each and everything जैसे center line का layout कैसे करना है
each and okay, same video is opening up. या सेंटर लाइन का लेआउट कैसे करना है, ओके तो ये सारे चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ऑल दिस सेंटर लाइन का लेआउट आप कैसे करोगे, एवरीथिंग मैंने आपको प्रैक्टिकली ऑनलाइन वीडियोस में सब कुछ आपको सिखा दिया है मैंने, ठीक है। ओके ये सारे चीज आप करोगे बैठ के, हर एक चीज आप करोगे ऑनलाइन। देन इसके साथ मैंने आपको 4 असाइनमेंट दिया, अगर 4 असाइनमेंट आप करोगे ना, फिनिश। उसके बाद टोटल स्टेशन को कैसे ऑपरेट किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, फिर शोरिंग का क्या है, बिकॉज शोरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कल आपको कल हाई राइज बिल्डिंग का जॉब मिलेगा, डेफिनेटली इंटरव्यू में पूछेगा कि शोरिंग क्या है, शीट पाइल्स क्या है, सेकंड पाइल क्या है, टेंजेंट पाइल क्या है, सोल्जर पाइल क्या है, एवरीथिंग दे आस्क यू, ठीक है। सारे चीज मैंने कवर किया है। फिर एवरीथिंग वट एवर आई टीच इज एवरीथिंग फ्रॉम द लाइव वीडियोस। फर्स्ट आई टीच यू द एक्सप्लेनेशन थियरी, फिर इसके इस तरह से मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल साइट इमेजेस दिखाऊंगा, कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या मिस्टेक्स हुए तो क्या करना है, एवरीथिंग आई टीच यू। फिर साइट लेआउट कैसे करना है, कॉलम मार्किंग इन एमएनसी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में कॉलम मार्किंग कैसे टोटल स्टेशन से होता है। तो अगेन ऑल दिस थिंग्स हैव कवर्ड इन माय कोर्स, किस तरह से करना है, यू सी टोटल स्टेशन कैसे ऑपरेट करना। टोटल स्टेशन आई विल नॉट टीच यू, डोंट वरी, वो रिक्वायर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड आल्सो। तो इस तरह से आपका कॉलम का मार्किंग सब होता है, दिस आई विल टीच यू। फिर उसके बाद एक फुटिंग का बीबीएस करेंगे, फिर चेकलिस्ट क्या होगा, बीओक्यू कैसे रहेगा, गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस क्या होगा। अगर आपको कल प्लानिंग इंजीनियर में जाना है तो साइट में फ्रॉम द साइट लेवल आप प्लानिंग इंजीनियर कैसे बन सकते हो, ठीक है। ये देखो ये आपको बहुत ही कम लोग पढ़ाएंगे। और जो मैं प्रोजेक्ट्स ले रहा हूँ इस बार, इट्स सच अ बिग अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन, इसमें बेसमेंट ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है। तो इस तरह से व्हाट आई विल टीच इज ऑल दिस थिंग्स, डीप फाउंडेशन पाइल प्लस राफ्ट, फुटिंग डिजाइन, फुटिंग एवरीथिंग आई टॉट हियर, गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, फिर लैपिंग कहाँ पे करना है एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। और भी है, अभी और भी अपलोड कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद आपको जाने ड्राइंग रीडिंग। ड्राइंग रीडिंग में मैंने लगभग 20 प्लस ड्राइंग्स लिया है, जहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई कवर्ड। जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग है, हॉस्टल बिल्डिंग है, स्लोप्ड और एसेंट्रिक फुटिंग कहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। एवरीथिंग मैंने यहाँ पे 45 मिनट्स, 41 मिनट्स, 22 मिनट्स का वीडियो, कट रीइंफोर्समेंट किया, एवरीथिंग आई कवर्ड हियर। इसके बाद नेक्स्ट हम 35,000 स्क्वायर फीट, दिस इज माई प्रोजेक्ट विच आई वर्कड फर्स्ट। तो ये वाला पूरा मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ओके। यूजी टैंक, फ्लैग पोल फाउंडेशन, जनरल डिटेल्स को कैसे पढ़ना है, डबल मेश फुटिंग कब आएगा। ओके, आई आस्क यू वन क्वेश्चन, डबल मेश का फुटिंग कब आएगा। आइसोलेटेड फुटिंग में आप यूजुअली बॉटम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, टॉप रिइंफोर्समेंट कब आएगा बताओ। फिर इसके बाद मैंने इंटीरियर ड्राइंग्स को कवर किया है, जिप्सम बोर्ड, टॉयलेट डिटेल, प्रिंट प्रोटेक्शन, प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, सीवेज ड्राइंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका बेसमेंट प्लस, ये आपका एक और कमर्शियल बिल्डिंग है, इसमें इन्वर्टेड बीम के कॉन्सेप्ट क्या है, एसटीपी टैंक हो गया, एवरीथिंग आई कवर इट हियर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इंटीरियर हो गया। फिर एयरपोर्ट के ड्राइंग्स, अब देखो बहुत सारे लोगों को एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट मिल जाने काम करने के लिए, मैंने एयरपोर्ट का ड्राइंग डाल दिया। तो इससे क्या होगा, जब आपको कोई इंटरव्यू में जाओगे या कोई आपको पूछेगा एयरपोर्ट के ऊपर एक्सपीरियंस है नहीं है, पर आपको एटलीस्ट आइडिया तो है ड्राइंग को कैसे पढ़ना है। अलॉन्ग विद दैट हाई राइज बिल्डिंग का ड्राइंग कैसे पढ़ना है, 4 बेसमेंट ग्राउंड प्लस 26, राफ्ट फुटिंग का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, हाई राइज बिल्डिंग का बीम्स, कपलर क्या होता है, पेडेस्टल क्या होता है, एवरीथिंग आई थॉट इट हियर। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक ऑलमोस्ट कवर्ड। इसके साथ और भी अपडेट हो रहा है, अभी नवंबर से मैं दोबारा अपलोड करूंगा इसमें, और फॉरेन के ड्राइंग्स अपलोड करूंगा, फॉरेन के प्रोजेक्ट्स के ड्राइंग को अपलोड करूंगा, और भी बहुत सारे नए नए ड्राइंग्स मेरे पास है, उसको मैं इन फ्यूचर ऐड करूंगा, इसी में ऐड ऑन हो जाएगा। फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे फुटिंग का साइज कैसे डिसाइड करोगे, कॉलम का साइज, सॉरी फुटिंग का साइज कैसे डिसाइड करोगे, पंचिंग शेयर का मतलब क्या, ये सब मैं मैनुअली सिखाता हूँ। ये सारे चीज ऐसे सिखाते हैं हम लोग। टेल मी वन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन ऑफलाइन हु विल टीच यू टू ऑल दिस लेवल, कोई नहीं पढ़ाएगा, उनको खुद पता नहीं है सारी चीज, ठीक है। सो व्हाट इज द सम मैनुअल कैलकुलेशन आपने जो कॉलेज में किया था, उसका यूज क्या है, उसको प्रैक्टिकली इस तरह से। ये आपका पंचिंग शेयर होता है, तो पंचिंग शेयर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, किस हिसाब से आप डेप्थ को वेरीफाई करोगे, दिस आर द थिंग्स विच यू हैव टू लर्न टू बिकम ए इंजीनियर। आप लोग ये सब सीखते नहीं है, दो तीन ड्राइंग देख लिया और बोल देंगे कि हमें सब कुछ पता है। फिर जब आप बड़े बड़े कंपनी में जाओगे, फिर हाँ यहाँ पे मैंने पाइल फाउंडेशन के बारे में डाले, पाइल फाउंडेशन, अंडर इम पाइल, टाइप्स ऑफ पाइल, वे टू प्रोवाइड बल्ब इन ब्लैक कॉटन सॉइल, हाउ टू डिसाइड पाइल डाया, पाइल ग्रुप, पाइल फाउंडेशन ड्राइंग, पाइल फाउंडेशन एंड ऑल, हियर आई हैव कवर्ड ऑल द पाइल राफ्ट, एसेंट्रिक फुटिंग एंड ऑल, ठीक है। अब बताओ, इतना मैं चीज सिर्फ इसमें डाल रहा हूँ, ये सिर्फ आपका लेवल 1 है। इसके बाद आप लेवल 2 से पहले आप इधर आ जाइए, आप मेरा क्यूए किसी का कोर्स पूरा खत्म कर लीजिए। अगर आप दोनों कोर्स खत्म करोगे ना, कोई भी इंटर में चले जाओ, साइट एग्जीक्यूशन आप कर लोगे। फिर इसी में फ्लैट स्लैब कंस्ट्रक्शन ऐड करोगे इन फ्यूचर, अभी नहीं हो रहा है। अभी और भी मेरे को 2 महीने क्योंकि मैं अकेला रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मेरे को इंग्लिश हिंदी दोनों में करना पड़ रहा है, तो इट विल टेक टाइम। पर यहाँ पे मैं आपको पूरा फ्लैट स्लैब का ड्राइंग पढ़ना एंड फ्लैट स्लैब का साइट वीडियोस यहाँ पे ऐड कर दूंगा। एंड दिसंबर के एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में यहाँ पे आपका हाई राइज बिल्डिंग माई 1 का आ जाएगा, ठीक है, वो इसी में आ जाएगा, ठीक है।
अब बताओ इतना अगर मैं कवर करके दूंगा, उसके बाद हम जाएंगे क्वांटिटी टेक ऑफ, मटेरियल कैलकुलेशन, एब्स्ट्रैक्ट शीट, बार बेंडिंग। बार बेंडिंग में एवरीथिंग, फुटिंग, एवरीथिंग आई थॉट। इसके बाद ट्राइंगुलर स्टिरअप कैसे करना है, डायमंड, सर्कुलर, 4 लेग, 6 लेग, 8, 10, 12, 16 लेग स्टिरअप का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। बीम, बीबीएस, कॉलम का हो जाएगा, एवरीथिंग आई कवर्ड अप टू हियर। और स्लैब का भी मैंने 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, क्रैंक बार, चेयर बार, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। क्रैंक बार 1 वे, 2 वे, एवरीथिंग इज कवर्ड। ठीक है, इतना हो गया। फिर मटेरियल कैलकुलेशन करोगे, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, पेंट कितना लगा, वॉल पुट्टी, बीओके कैसे बनाओगे, एवरीथिंग यहाँ पे कवर है। ठीक है, इसके बाद और क्या है, इसके बाद ये वाला बिलिंग का है, मेरा नहीं है, दूसरे सर से मैंने रिकॉर्डिंग करके लिया है। इट इज गुड, ठीक है। ओके, आई विल नॉट टेल कि बहुत एक्सपर्ट लेवल का है, पर ठीक है फॉर समबडी हु वांट्स टू हैव अ नॉलेज अबाउट बिल्डिंग। आप एक बार चेक करिए कंटेंट, ठीक है कोर्स, आई मीन गुड कोर्स है, बट अगेन कुछ चीजें उसमें ऐड नहीं किया, पर अगेन सेम थिंग ना, हम किसी से कोर्स बनवा लेते फिर वो लोग हमें मिलते नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी ट्राई टू अवॉइड दोस थिंग्स। फिर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज अ वेरी गुड कोर्स। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन में री रिकॉर्डिंग करूंगा। अब अगेन ये भी आपको दिसंबर के एंड तक पूरा इंटरव्यू प्रिपरेशन कवर हो जाएगा। अभी तक ऐड किया, पर नया रिकॉर्डिंग दोबारा करूंगा। मैं एक चीज बताऊंगा, आई एम द ओनली पर्सन हु विल डू री रिकॉर्डिंग। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन में ना, एक बार कोर्स डालने के बाद कोई बंदा री रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगता है और उनको कोई फायदा नहीं, वो नए कोर्स बनाने के पीछे लग जाएंगे। आई डोंट डू दैट। मुझे जितना मैं नया चीज सीखता हूँ ना, आई मेक श्योर कि नया चीज जो मैं सीखूंगा यहाँ पे डालूंगा, और कोर्स को मैं हर बार नए नए चीजें ऐड करके बनाता हूँ, इसलिए मैं इसको दोबारा रिकॉर्डिंग करूंगा। एंड फिर इसमें एमएस एक्सेल का मिलेगा। इसके बाद एक खत्म होने के बाद देन यू गो फॉर अ मिड लेवल, जैसे बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होते हैं, एमएसपी, प्राइमरी और फंडामेंटल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बस इतना कर लो, काफी। ये लेवल 5 का है। इसमें स्टील स्ट्रक्चर, अभी तक मैं सिर्फ आरसीसी का बात कर रहा था। कल मान लो तो आपको स्टील स्ट्रक्चर का काम करना है, ये सारे आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के काम है। ऑल दिस आर योर स्टील स्ट्रक्चर। आपने ऐसे ये सारे पेडेस्टल्स होते, तो ये सारे आपके स्टील स्ट्रक्चर, जो आपके कॉलम्स है, वो सारे चीज आपके स्टील स्ट्रक्चर्स के आते हैं। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने हैंडल किए हैं, जो चीज मैं साइट विजिट पे जाता हूँ, दोज थिंग्स आई एड इट हियर। तो इसमें आपको पूरा पीबी का मिल जाएगा। ठीक है, फाइन। बस इसमें रेविट और भी अपडेट, रेविट अपडेट नहीं किया, रेविट बाद में अपडेट करूंगा कुछ टाइम के बाद। दैट्स इट यार। तो दिस इज ऑल अबाउट माई कोर्स। आपको इससे अच्छा कंटेंट कहीं और जगह पे मिलेगा, वहां से करो। बट आई वुड से जितना मेरा एनालिसिस है, जितना मेरा 5 ईयर ऑफ ऑनलाइन टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कंटेंट इज फार फार बेटर। आपको दूसरी जगह पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, और आपको उसमें गूगल स्केचअप भी मिलेगा, 3ds मैक्स में मिलेगा, ई टैब्स में मिलेगा, बट वो किसी काम का नहीं है अगर आपको स्ट्रक्चर डिजाइन में नहीं जाना है तो। ठीक है, चलो यार, एक बार क्वेश्चन डालो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, इज देयर एनी शॉर्ट बीबीएस मेथड इफ द बिल्डिंग इज इन 45 डिग्री में हो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? शॉर्ट बीबीएस मेथड इफ द बिल्डिंग इज इन 45 डिग्री? नो आइडिया। यू हैव प्लान, यू सेंड इट टू मी, लेट मी चेक। सर 3 years साइट एक्सपीरियंस है, गल्फ में प्लानिंग इंजीनियर जॉब के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है? सिर्फ गल्फ के लिए बेस्ट कोर्स फॉर प्लानिंग इज ऑफ कोर्स प्राइमरीरा ही है, तो आपको प्राइमरीरा सीखना पड़ेगा। ठीक है। सर डिप्लोमा सिविल इंजीनियर जा सकते हैं क्या बिम में? हाँ, बिम में आप डिप्लोमा ले जा सकते हैं। सर इंग्लिश स्पीकिंग भी कोर्स दे दीजिए, वो यूट्यूब से देख लो यार, वो सब नहीं चाहिए, यूट्यूब से देख लो, मिल जाएगा। सर ऑफर कब तक वैलिड है? कौन सा ऑफर? ऑफर है 20% का ऑफ मेरे कोर्स पे अभी चल रहा है, यू कैन टेक इट। सर बिम में डिप्लोमा जा सकते हैं, यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। पीबी स्ट्रक्चर कंपनी साइट इंजीनियर के फ्यूचर के लिए कैसा है? पीबी स्ट्रक्चर कंपनी, इट्स गुड, पीबी इज ऑल्सो गुड, बिकॉज अभी देखो लोगों को फास्ट कंस्ट्रक्शन चाहिए। पीबी इज समथिंग गुड जहाँ पे कंस्ट्रक्शन फास्ट होता है। जैसे आपने डेक शीट लगा दिया, कंक्रीटिंग डाल दिया, तो फिनिश, आपको ये शटरिंग सब करने की जरूरत है ही नहीं। ये जितने भी आप शोरूम्स देखते हो ना, जो मारुति सुजुकी का शोरूम, फिर ये टोयोटा का शोरूम, सब आप जो देखते हो ना आजकल, वो सारे आपके पीबी से ही बनते हैं। बहुत सारे घर आज पीबी के बन रहे हैं। तो पीबी इज गुड, अच्छा है। वो सब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, इट्स गुड। So I'm working as a site in a PV structure. Is it good? Yeah, PV in structure company is good. Yeah. You see, if you're working in PV company, then apply for good company. Kirby is one good company. Zamil Steel, Everest is good. EPAC is good. So there are many good companies. If okay, yeah. What is the minimum and maximum die of bar which can be used in pedestal? In pedestal, we provide generally 0.1%. So what we generally do is जो भी आपका कॉलम का साइज है, आप एक्स्ट्रा चारों तरफ 4-4 इंच का एक्स्ट्रा ले लो, एंड देन यू कैन प्रोवाइड 12 डायमीटर का बार मिनिमम अप टू द प्लिंथ लेवल तक आप लेके जा सकते हो।
I think reinforcement should be 0.15%. I don't exactly recall. Let me check. Okay, I think it is 0.15% का reinforcement आपको पेडेस्टल में प्रोवाइड करना है. सर मैं डिप्लोमा अभी 5th सेम में हूँ, तो कुछ ऐसा बताए कि मैं क्या करूँ. सी मैं तो अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा क्या, मतलब अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली एनरोल इन माय कोर्स. दे आर बेटर बेटर एंड बेटर. आप एक बार डाउनलोड करो. आई हैव गिवन इट टू यू. आप इसको डाउनलोड करिए. ठीक है, तो डाउनलोड इट. यहाँ पे मैंने क्यूआर कोड दिया है, डाउनलोड करो. फ्री कोर्स में एनरोल करो. एक बार चेक करो हाउ आई टीच. एक बार देखो कि आपको क्या क्या कंटेंट अच्छा लगेगा, क्या क्या है, एंड देन यू कैन एनरोल इन द कोर्स. ठीक है. ये 45 डिग्री में है तो स्लैब, तो आपका बिल्डिंग 45 डिग्री में होगा ना, तो ये तो सेम ही रहेगा ना. अगर आपका बिल्डिंग 45 डिग्री है तो इट्स फाइन. प्लान 40, आपका बिल्डिंग ऐसे 45 डिग्री में रहेगा ना, तो स्टील तो ऐसे ही जाएगा. मैं समझा नहीं आपका स्टील कैसे 45 में जाएगा. ऐसे कुछ बेंड सब होता है क्या. देन यू हैव टू सेंड मी द ड्राइंग. मुझे आइडिया नहीं यार. आप अपना ड्राइंग को सेंड करिए. लेट मी चेक. ठीक है. ओके. एनी अदर क्वेश्चन. और कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को. हम्म. आप अपने ड्राइंग को सेंड करिए यार, मैं चेक करूंगा. आई डोंट नो A45 हाउ इट इज. ओके, विल सी दैट, नो प्रॉब्लम. What are the possible mishaps or negligence which can happen in casting of, yeah, which can happen in casting of footing, column, beam, and how to rectify them. See, there is something called as a checklist. In the checklist, we have a pre-checklist, process, and post-checklist. Okay. So let's say if you're doing a concreting work, okay, we have some for shuttering also. We have checklist. So let's say you have done the footing shuttering, and then what you'll do, you first go and check whether the shuttering has been put it in a correct way or not. Go and check the length, breadth, then check the diagonal. See whether the props that is given is correct or not. Usually the distance between the two props we generally keep 300 mm. So make sure that all the props are kept at 300, 300, 300 spacing. Then when you do a shuttering work, no, this is like 90 degree. So in this 90 degree, I mean at the corners there will be gap. So this gap you have to fill. So how you'll fill, to with the help of thermocol, you can put a thermocol there, and that gap will be filled. So these are the checks which you have to do on the shuttering. So while doing the concreting again, once these gaps are filled, definitely the slurry loss will not happen. अगर slurry loss नहीं होगा तो honeycombing होने का chance बहुत ही कम है. And while pouring the concrete, make sure you're using vibrate at regular intervals. So if you follow all these things, and when you're pouring the concrete, make sure you're using proper chutes and all those things. तो अगर आप इस तरह से काम करोगे, डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले वो सॉल्व हो जाएंगे. अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया, वो गैप को फिल नहीं किया, तो स्लरी लॉस होगा. अगर स्लरी लॉस होगा तो फिर कल हनीकॉम्स आएंगे. कल हनीकॉम्स आएंगे, फिर उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. एडिशनल काम है आपको. शटरिंग मान लो आपने सही से चेक नहीं किया, तो व्हाट विल हैपन. शटरिंग अगर आपने सही से नहीं किया तो व्हाट विल हैपन. तो जब आप कंक्रीट डालोगे, कंक्रीट लैटरल प्रेशर अप्लाई करेगा. तो वंस इट अप्लाइज लैटरल प्रेशर, आपका जो शटरिंग आपने वर्टिकल रखा था ऐसे ओपन अप हो जाएंगे. सो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड. ठीक है. So this is how it is. Of course, there are a lot of things. Again, same answer from me. Everything I've explained in my course, but still, if you want, I'll show it. I mean, where is that? See, I'll keep on telling about my course. Okay. Where is that? You want a course, no? Okay. Screen is visible, no? Okay. Okay. Just 1 minute. For beam bottom, I'll show you one checklist because it is there in my this thing only. See, this is a checklist for the beam bottom. So what all check you will do? First, you'll check the level of beam bottom. Then whatever props you are keeping, that props has to be at, let us say, 350, or you can even go for 400. 350 center to center spacing is what you can do. Okay. So all these other checklists which will be given. So based on the checklist, you are supposed to do the work on the construction side.
So again, when I teach you, I make sure I'll teach you all these things. You see how I teach. Okay, I'll give you a lot of assignments. I'll tell, see, this is a column inner to inner distance. Tell me how this is 5 meter and this is 6 meter. Tell me how much number of props is required. Those calculations I'll make you. Then again, I'll make just 1 minute. Okay, yeah, just 1 minute. Huh. So again, when I teach you, again, I'll show you all this practical beam bottom fixing and all. Then I'll be asking you a lot of questions. If you are a site engineer, how you will take care of this? What all check you will do on the construction site? So then along with that, whether the props what you have placed, whether it is correct or not. What is the good diameter? What is the diameter of this wooden bullies? We call this as wooden bullies. What should be the diameter of this? These are the questions what I ask in my course, and I'll make you people work on that. Then this is something called as acro span. This is called as acro props. Okay, then I'll also make you understand what is the rate going on in the market. So the rate of one acro prop is 1350. Let's say you are an engineer. Tomorrow I told you I got a new project. Tell me the entire material calculation. Can you not do all this material calculation? You should do all this material calculation. You're getting my point, no? Then this is called as a silverwood runner. Okay, if you have seen the construction, we put all these things, no, like this, and all these things we keep, battens and all. So that is called as a silverwood runner. So it is available in the market for in terms of cubic feet and all. It is 2 inch by 3 inch size. You should know how to calculate that. If I give you such kind of project, you should know how to calculate the entire, what is that, slab centering quantity. I want you to calculate beam bottom quantity. I want you to calculate beam outside shuttering quantity. I'll give you this project. I'll ask you to do all these things. I will also do it with you. This is called as doka formwork. This is one high rise building construction. This is doka formwork where we use H20 beams. If you're working for a high rise building, definitely you should know. If you're going for companies like, let's say, Satwa, DLF and all, and I don't know if someone is taking your interview, definitely will ask you whether you know about doka. You don't know anything about doka, then definitely they'll not entertain you in the interview. You have been trained or you have been taught all these local constructions, but in the interview they expect you to know H20. Who will teach you? No offline training is going to teach you all these things. I'm damn sure of all these things. So in my lecture I teach you these are the things which you should. And staging, this is something called as staging. I mean, this is how you prepare a drawing. This is for a, this is a shuttering scheme. Plan showing typical element of steel doka formwork, how you are supposed to do. There's a formwork engineer. If you work in a big company, you'll be having someone called as formwork engineer. He will do the formwork design. You're getting my point, no? These are the things which you have to learn as a site engineer. So I don't know how many of you know all these things. So if you know all these things, then I'm fine. I know I can. I mean, you people can call yourself as a site engineer. But if you just go on to the site and if you can look after the construction work, it's difficult. Yeah. जॉब हंटिंग के रिगार्डिंग और वीडियोस बनाए सर जी। हाँ, ऑलरेडी मैं कितना भी वीडियो बनाऊं, करना करने का तरीका तो वही है ना। रेफरल पूछना है, सीनियर से बात करने, दोनों लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, छोड़ दो। ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन साइट में जाना है, लोगों से बात करने, अच्छे रेज्यूमे लेके जाने, उनसे बोलना है। आप वहां पे जाके पूछोगे सर मेरे को जॉब दे दो, मैं फ्रेशर हूँ, वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। आपको कैसे बात करना है, रेज्यूमे लेके जाओ, पोर्टफोलियो अटैच करो, सर ये मेरा रेज्यूमे और पोर्टफोलियो आप एक बार चेक करिए, मैं आपकी इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, आप बताइए मैं मुझे इंटरव्यू के लिए कब आना है। तो आपको ऐसा ऐसा बात करने उनसे कि डायरेक्टली इंटरव्यू उसको शेड्यूल करना है। दिस इज हाउ यू शुड लर्न टू स्पीक। आप उधर जाके सर मेरा रेज्यूमे है, अगर कोई वैकेंसी है तो आप बताइए, वो लेके अपने पास रखेगा। ठीक है, आप रेज्यूमे दोगे, पोर्टफोलियो दे दो, तो बताओ सर मेरे को ये सारी चीज आता है, आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना मैं हैंडल कर सकता हूँ, आप बताइए कब इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे, मैं आके उस दिन इंटरव्यू दूंगा। अब वो बंदा सोचेगा ना यार इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे, तो देखेंगे एक बार इंटरव्यू, एटलीस्ट एक मौका तो दे रहा है, बाद में तुम पास हो गए नहीं होगे तो छोड़ दो। समझ में आ रहा है ना? हाँ, पर उतना बात करने के लिए पास, उतना कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, फाइन। दिस इज अनदर ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इज गो टू लिंक्डइन। ऑलरेडी आई शोन यू, बहुत सारे वीडियोस बना के रखा है। लोगों को कनेक्ट करो, लोगों से डायरेक्टली जॉब मत पूछा करो, कोई देगा नहीं। लोगों को कैसे बात करने, जैसे मान लो आपने मेरे से कनेक्ट किया, अक्षय सर कोई जॉब है तो बताओ, मैं उसको रिप्लाई भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्या करना है, जब आप लोगों से कनेक्ट करोगे उनका प्रोफाइल चेक करो, देखो वो किस कंपनी में काम कर रहे हैं। देन उनका थोड़ा प्रोफाइल पूरा चेक करो कि उन्होंने लेट्स से साइट इंजीनियर से स्टार्ट किया,
मान लो 2-3 साल के बाद वो बंदा प्लानिंग में चला गया, यू विल सी देयर प्रोफाइल, फिर उससे स्टार्ट करो कम्युनिकेशन। सर आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल, इट्स वेरी गुड, I just want to know your journey. How was your journey? And I am a fresher who is actually looking forward to work in the construction industry. What advice you would give to me? तो आप ऐसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करो। आज बात किया, कल रिप्लाई करेगा, 3 दिन के बाद करेगा, चलते रहने दो। अगर फ्लो बन रहा है तो एक बार अपना रेज्यूमे फॉरवर्ड करो, सर ये मेरा रेज्यूमे मैंने बना के रखा है, आप बताइए इस रेज्यूमे में क्या चेंजेस करना है। तो वो बंदा आपने जॉब नहीं पूछा, वो बंदा सोच रहा है कि हाँ बंदा मेरे से एडवाइस ले रहा है। जब कोई बंदा आपसे एडवाइस पूछेंगे यू फील हैप्पी ना, उस बंदे ने एडवाइस, आपने एडवाइस पूछा तो देखेगा आपका, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। फिर मान लो 1 हफ्ते के बाद कभी बोला सर कि आप बता दीजिए अगर कहीं जॉब है तो बता, इस तरह से मैंने एक बंदे का बता दिया, आप ऐसे 10-15 बंदे को कनेक्ट करो, ठीक है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग है, ठीक है। फिर इसी तरह से आप 1-2 महीने तक करोगे तब जाके कुछ होने वाला है, ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट एक्चुअली। एंड आपको किसको कनेक्ट करना है, कंपनी के एमडी, कंपनी के सीईओ, उनको कनेक्ट करना है, एम्प्लॉयज को भी कनेक्ट करना है, बट आपको जो जॉब मिलने का या जॉब देने का डिसीजन टॉप मैनेजमेंट वाले लोगों का होता है। एम्प्लॉयज कैन जस्ट फॉरवर्ड योर रेज्यूमे, बट आप डायरेक्टली अगर टॉप मैनेजमेंट को रेफर कराओगे, लेट्स से एमडी है, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। लास्ट टाइम आई शोन यू, अभी मेरा प्रीवियस वीडियो उसी के ऊपर था, ऐसे आपको करना पड़ेगा। यस। जॉब हंटिंग के रिगार्डिंग सर, सारताज क्लासेस आपका ही चनले चनले है क्या, उनसे चेहरा आपका मैच, कौन कौन है वो सारताज? हाउ टू कैलकुलेट शटरिंग मटेरियल फॉर बीम, एक्सप्लेन, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनरोल इन माय कोर्स। सी दिस थिंग, आनंद कुमार सिंह, यू लॉट ऑफ डाउट्स, straight away I'll give you one answer. If you have enrolled in my course, well and good. If not, enroll in my course and learn all these things. Sir, I'm stuck in site engineer. How I convert into billing and cost estimation? So, Paras Sharma, I want to know how many years of experience do you have? Sir जी, MBA in construction में, हाँ MBA in construction management you can do. सर MBA in construction मैंने from foreign country का मेरे को आइडिया नहीं है, पर आप ये निकमार and there are other good colleges, you can check it out. Sir, please help. I have already shared the drawing on WhatsApp. हाँ, I'll check it later. Sir, should we place longer river higher than the pedestal for a pedestal, or should we provide it for exact height of the column and submerge the rebar? No, I mean pedestal bar you will stop it at the ground level. Column bar you will take it to the full height. Whatever pedestal extra bar you will provide, no, that at the ground level it will come and stop, because your pedestal also will stop there. Column reinforcement will take it till the end. See, if you have 2 year of experience, गेटिंग अ जॉब इन अ बिल्डिंग इज लिटिल डिफिकल्ट। बिल्डिंग एंड प्लानिंग जॉब आपको आसानी से मिलता नहीं है, क्योंकि वहां पे ना व्हाट अपने फ्रेशर्स को एंटरटेन नहीं किया जाता है, आपको एस्टिमेशन में मिलेगा। दिस पारस, सी इन माय चैनल रिसेंटली आई हैव शेयर्ड दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, ग्लिट्स, आई डोंट नो फ्रॉम व्हिच place you are, but if you can come for an interview to Bangalore, I don't know whether interview is on 7th and 8th of November. Okay, interview is on 7th and 8th of November. If you are ready, then definitely you can come and apply for this, because they're asking 0 to 15 year experience. And if you have good site knowledge, if you know, and if you know to do estimation in Excel sheet, BBS and all, definitely you can give a try. Glitz is a good company to start with. Okay, yeah, हाँ, like I was mentioning कि आपका building and ये वाला, sir, give information about highway construction, airport, highway and all. I'm not good. I'm not a person to give knowledge on highway because I have never worked. Airport construction and all is similar to your building construction, but of course, lot of things will come there, like that tower construction, then hangar construction, then all those roads and all those things will going to come in case of airport. You're from Greater Noida. Sit. If you want to take a risk, take a risk. Come to Bangalore for the interview, and make sure when you're coming, if you feel you are very confident that you can face the interview, you're good at site knowledge, definitely do that. Or if you feel you want some knowledge, I mean, अगर आपको estimation BPS सब अगर आपको manually Excel sheet पे करना है, तो पूरे building के ऊपर अगर आपने काम करके रखा, well and good. नहीं तो you can enroll in my course, learn it, then you can give a try and come for an interview. You can do that.
But again, we don't know what is the chance of getting hired, but you can give a try, because as long as you don't try ना, कुछ नहीं होगा. तो आपको ट्राई तो करना पड़ेगा. Yeah, pedestal will be till the plinth beam bottom. Correct. Then after that only you are going to put the this thing. What is that? There only your plinth beam is going to start. WhatsApp number, it's 8095128107. WhatsApp me, don't call me. I won't pick. So just WhatsApp me whenever I'm free. I'll reply to your this thing. या यू कैन ट्राई. देखो, आपको कुछ रिस्क अपने लाइफ में लेना पड़ेगा. सी आई विल टेल यू माय जर्नी. जब मैं टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, आई वाज इन बैंगलोर. तो मेरे को एक जॉब मिली ग्रेटर नोएडा में, तो एनआईटी कॉलेज में. ओके. बट आई आई वाज गुड इन टीचिंग. सो आई न्यू अगर मैं जाऊंगा कुछ ना तो कुछ मैं इंटरव्यू में बोल सकता हूँ. तो उस टाइम पे मेरे पास पैसा भी नहीं था, मेरे पास क्रेडिट कार्ड था. और ऑफ कोर्स बैंगलोर टू ग्रेटर नोएडा, आई मीन मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आऊंगा, तो आई विल गो बाय फ्लाइट. तो 8,000, आई थिंक 7,500 कुछ फ्लाइट का टिकट है. ठीक है. तो जाने का 7,500, आने का 15-16,000 मैंने स्वाइप कर दिया अपने क्रेडिट कार्ड से. आई वेंट, आई गेव इंटरव्यू, आई गॉट सिलेक्टेड. तो रिस्क तो लेना पड़ेगा. तो बिकॉज ऑफ दैट रिस्क आई गॉट सिलेक्टेड. आई लर्न, फिर ऑल दोस थिंग्स हैपन. एंड वहाँ पे जाके मैं भी ट्रेनिंग दे रहा था. आई मीन 2020 आई हैव बीन ट्रेनिंग सिंस 2018. ओके. आपको जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये सारी चीज़ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पढ़ाता था वहाँ पे. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे शाम के टाइम में उन्होंने एक नया बैच ओपन किया था कि इनोवेशन सेंटर के नाम से एक बैच ओपन किया था. तो हम फैकल्टीज को मुझे लिया गया था उसके लिए. तो आई यूज टू टीच देम दिस साइट एग्जीक्यूशन, ड्राइंग, रीडिंग. सिंस 2018 आई यूज टू टीच. ठीक है. So since I took that risk, I was able to reach there, and I am able to sit in front of you and do a videos and all, teach you all these things. तो रिस्क कभी ना कभी तो लेना पड़ेगा. इट्स नॉट ओनली अबाउट द मनी. सर आप सोचोगे सर हदना 16,000 रुपये वेस्ट हो गया. हाँ, वो तो अगर सिलेक्शन नहीं होता तो वेस्ट हो जाता, पर इट्स नॉट ओनली वेस्ट ना. आपको एक्सपीरियंस मिला. जाने के बाद पता चला कि आप कहाँ पे हो, क्वेश्चन पूछने वाला बंदा कहाँ पे है. चलो आप दिल्ली चला गए तो दिल्ली का एक्सपीरियंस भी हो गया. So that is how it is. ठीक है. Okay. Sir, is that PCC is permissible for raft? Our senior says that. Is that, yeah, PCC is permissible? Yeah, see, you can do, see, always it's better you have to do PCC. You cannot directly lay reinforcement and all directly. Always you have to do PCC. Okay. You see, PCC is permissible for raft. Our senior engineer says that any technical point to do PCC beneath raft. See, the right construction practices: do a excavation, proper compaction, PCC. Over the PCC, provide a cover block, put the reinforcement, put the shuttering, and do the concreting. This is the right construction practice. See, soling is not a general construction practice. Why we do soling? Sometimes when you do excavation, if you don't get a hard strata, we want to increase the hardness of the soil there immediately. I don't want to further do excavation. In that case, what people suggest is that do excavation, do soling. Few people even do sand filling, and over that they put PCC. But general practice and all, we don't do sand filling and soling. Always it's PCC and then the foundation. But in some construction site, usually when your N value, no, when you do this SPT test, your N value will be less than 10. So when your N value is less than 10, then definitely your soil is not having a hard strata. To increase the SBC of the soil immediately, what people suggest is do soling, do sand filling, then put a PCC. That is the practice. Okay. Again, in your drawing, if it is mentioned that PCC, sorry, if it is mentioned that soling and PCC, definitely follow that, because people those who have done the designing, they have thought and done it. No, fine. Sir, how long you had? Like, no, I'm having experience even now also, but now I'm completely shifted to this online teaching and all. But I regularly do visit construction site. My friends are into construction. I visit there. Along with that, I take permission from other people in the industry for site visits to teach you people. Because if you see my course, everything I teach practically. So I need to take permission from few of the people working in the construction industry. I'll go for a site visit and all. I started since 2015. So there one year I worked. After that, I did 2 years of MTech. Then since 2020 to 5, around 5 years, I have been working in the sense both. I go and look after certain supervision and all. Along with that, I teach you people also. Yeah.
ये हाउ ओके, ये हिंदी में लिख दिया सर मैं, व्हाट इज दैट, मैं हिंदी पढ़ूंगा नहीं, आई जस्ट सी। सर मैं बीटेक फाइनल ईयर का छात्र हूँ और मैं डिप्लोमा भी किया हुआ है, मेरे पास दो, व्हाट इज दैट, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है यार, ये तुम इतना हिंदी मत लिखा करो यार इंग्लिश में। ऑप्शन है बीटेक के बाद या तो जॉब करने का, पर मैं जॉब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा, हाँ मेरा क्या है, और आगे लिखो ना। हाँ ओके, यार इतना हिंदी मत लिखा करो, मेरे को और 10 मिनट लगेगा, ठीक है। आप इंग्लिश में लिखो, नहीं तो मेरा नंबर है, डायरेक्टली वहाँ पे मैसेज करो, ठीक है। मैं हिंदी बात कर सकता हूँ ना, इतना मेरे को टाइम लगेगा हिंदी पढ़ने में, ठीक है। ओके okay, what is that, okay fine, I'm a detailer on PB on American structure, yeah, good good, Dev Shinde, yeah. Oh, this Munaf, I think I've answered your question, okay. Usually that is a practice. So how did you learn Hindi? How did I learn it? See, right from my childhood, I come from a place where we speak Hindi also here. Okay, so here we have most Muslim population in my place, Bhatkar. So our I speak Kannada. Kannada is a what do you call, language of Karnataka. Okay, so these people don't speak Kannada. So in that case, the only option to communicate with them is Hindi. Okay, that is how I learned. And my brother is also a civil engineer. So he used to work in Delhi and all those place. So every time for summer vacation and all, I used to go there. So that is how I learned Hindi. And also I started my career in Ahmedabad. So of course there also I had to speak in Hindi only. Then again almost 2.5 years I was in Delhi, Noida. Then again I learned Hindi. That's it. So that is how over the period of time I have that experience. How long you had experience in civil engineering? Sir, please give knowledge about rough drawing. Rough drawing I've given. I mean, if you have any drawing, I'll explain you. What do you want about what is construction joint? What is construction joint? See, construction joint we try to avoid as far as possible. We don't want construction joint to be given. So what is construction joint? Let's say if I have a huge chunk of concrete or slab, let's say this is a raft, okay, or raft or any slab. Okay, so if I start to do the concreting of this, I require, let's say continuous, let's imagine, I want continuous, let's say 24 hours of concreting. If I start from here, by the time I reach here, no, I require 24 hours to do the entire concreting. Now let's say you don't have good logistics with you, or the RMC plant which are providing you the concrete and all, they say continuous 24 hours I cannot provide, even you don't have good labors and all. So in that case, you have to stop the work. Let's say you'll work for 14 hours and you'll stop. So once you stop, you have reached somewhere here. So at this particular joint, you're going to stop the concrete today. Tomorrow you'll come and start from here. So there one joint has happened. So that joint is called as a construction joint. So next time when you come, you have to properly treat that. That means extra whatever concrete I have done today, it has set. Since it has set, if any loose aggregates are there, I have to remove it out. And you can do this you get this nitro bond also, you have to apply there, and then you start with a new concrete so that a good joint will happen between them. It will add as a good concrete. So this is what we do. But we know that if I give a construction joint there will be error. I mean, there will be a problem. Sometimes there may be a leakage and all. So as far as possible, we try to avoid the construction joint. Okay, as far as possible, we'll try to avoid the construction joint. So that is why if you see this mass concreting and all, no, what we do, 24 hours, 30 hours, 40 hours continuous concreting we'll do there. Okay, that is how it, that is construction joint. Sometimes we give, but you have to properly treat the joint and all. This is one thing. Apart from that, there is one more joint, that another is that expansion, not near. This is construction joint. आर्किटेक्चर के लिए कोर्स बताओ सर, आर्किटेक्चर में आपको क्या सीखना है? So my UPPSC junior exam is currently on hold as my court case status hasn't been cleared yet. I'm already cleared the PET exam, so I'm considering doing an MBA in ACM or NICMAR. You can do MBA from NICMAR, ACM, if your parents are ready to spend. If you're Yeah, if your parents are ready to spend, na, you can do it. Not a problem. It's almost 11:11. Okay, okay, yeah. I have to go. You drop the questions there. Whenever I get, I'll explain. Okay, another 2 minutes. Okay, I'll uh, I'll come after 2 3 days. Hmm? Okay.
It's 𝗂𝗃𝗃𝗃𝗃, what you do, I'll give you my number 8095128107. You people can WhatsApp whatever queries you have. Whenever I'm free, no, I'll reply there. Okay, done, done. Water stopper again, same thing. If you're doing this underground tank, water tank and all, again there also it's the same thing. Complete. Let's say if there is 3 meter wall and all, we don't do casting at once. Today we'll do, let's say, 1 meter. Tomorrow again I'll do 1 meter. So today and tomorrow again new joint has happened. So before leaving today, you have to put one rubber stopper there, and tomorrow you come and you do the concreting, so that if any leakage and all is there, it will stop. That is called as water stopper. All these things explained in my 𝗘𝗴𝗃𝗃𝗃 course. Enroll and learn all these things. Simple. How long you'll keep on explaining? How long you'll keep on asking someone? Enroll in the course. Give me 2 to 3 months of time. Learn all these things. Then you can speak confidently with your senior. Yeah. Okay. Okay. Done. Good night. Somebody asked another 2 3 questions are there. I'll explain when I come next time. Okay. Chalo. Fine. Good. Good. I mean, good night.